دوستوں، ایک مرتبہ ایک مولانا صاحب نیم کے پیڑ تلے مسجد کے کچے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے اور بچے بلند آواز میں اپنا سبق دہرا رہے تھے۔ جیسے ہی کوئی بچہ ذرا سی بھی غلطی کرتا تو مولانا صاحب اسے فوراً ٹھیک کروا دیتے۔ بچے اپنی الگ الگ آواز میں سبق پڑھ رہے تھے۔ اتنے میں اچانک مولانا صاحب کو ایک گمبھیر سی آواز آئی۔ آواز سن کر مولانا صاحب ہڑبڑا گئے۔ کہنے والا کہہ رہا تھا، میاں جی السلام علیکم۔ مولانا صاحب جن بچوں کو پڑھاتے تھے ان سب کی آواز پہچانتے تھے، لیکن یہ آواز الگ تھی۔ تبھی تو مولانا صاحب ہڑبڑا گئے تھے۔ مولانا صاحب نے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ ان کے سامنے تقریباً 7 یا 8 سال کا ایک لڑکا سر جھکائے کھڑا تھا اور اندر آنے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ مولانا صاحب نے کہا، آ جاؤ میاں، اندر آ جاؤ۔ اکیلے آئے ہو کیا؟ کوئی اماں ابا نہیں آئے تمہارے ساتھ؟ یہ سنتے ہی لڑکا سب بچوں کو فلانگتا ہوا مولوی صاحب کے قریب آ کر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ اس نے مولوی صاحب کے سوالات کا کوئی جواب نہ دیا۔ شاید وہ مولوی صاحب کے اگلے سوالوں کا منتظر تھا۔ مولوی صاحب کو خود ہی پوچھنا پڑا کہ کیوں میاں، کون ہو تم اور کہاں سے آئے ہو؟ کیا کچھ پڑھنا چاہتے ہو؟ بچے نے جواب دیا، جی ہاں مولوی صاحب، مجھے اپنے شاگردگی میں لے لیجئے۔ مولوی صاحب اس کے معصوم سراپے میں کھو گئے تھے، لیکن اس بچے کی آواز تھوڑی الگ تھی۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولے، کیا تمہارا تعلق اسی گاؤں سے ہے؟ یہاں تو لوگ پنجابی بھی ٹھیک سے نہیں بولتے اور تم ہو کہ اردو بول رہے ہو۔ لڑکا ذرا سا بھی نہ گھبرایا اور بولا، وہ دراصل مولانا صاحب میں اس سامنے والے جنگل کے پیچھے جو گاؤں ہے وہاں سے آیا ہوں، جہاں ندی بہتی ہے۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے، پچھلے مہینے موسلا دھار بارشوں کی وجہ سے وہاں سیلاب آ گیا تھا اور اس سے بہت سارے درخت بھی اکھڑ گئے تھے، گھر بھی بہہ گئے تھے۔ ہمارا گھر بھی اسی میں ڈوب گیا تھا۔ اسی طرح میں اپنے والدین سے بچھڑ گیا اور اب میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے پاس رہوں، کیونکہ اس گاؤں کے تمام بچے آپ سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اسی نیم کے پیڑ تلے اس کی بڑی گھنی ٹھنڈی چھاؤں ہے، میں یہیں رہا کروں گا۔ مولوی صاحب نے جب اس کی بات سنی تو حیرت سے بولے، لڑکے تمہاری عمر کیا ہے؟ قد کاٹ سے تم 7 یا 8 سال کے لگتے ہو، مگر بات چیت تو بڑوں جیسی کرتے ہو۔ بچے نے کہا، میں 13 سال کا ہوں، بیماری کی وجہ سے میرا قد چھوٹا رہ گیا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر تمام بچے کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ مولوی صاحب نے وہیں بیٹھے بیٹھے 1-2 بچے کو چھڑی ٹکا دی اور پھر لڑکے سے کہنے لگے، اچھا پتر، تم آج سے خود کو ہماری شاگردگی میں سمجھو، اور ہاں، تمہارا نام کیا ہے؟ بچے نے کہا، جی میرا نام میراز الدین ول سراج الدین ہے۔ اس کی اردو پر دیہاتی بچے پھر سے ہی کرنے لگے اور اب تو مولوی صاحب بھی ہنس پڑے۔ انہوں نے سب بچوں کو چھٹی دے دی اور کہا کہ اگر کہیں کوئی اچھا سا سالن مل جائے تو اسے الگ کٹورے میں ڈال لینا میرے واسطے، دال ساگ تو ہمیں ہضم نہیں ہوتا۔ نیا لڑکا یہ بات سن رہا تھا۔ وہ جلدی سے بولا، مولوی صاحب آج میں آپ کے لیے کھانا لاؤں؟ میری بہن اس سے اگلے گاؤں میں رہتی ہے اور بڑا اچھا کھانا بناتی ہے۔ ملا جی کے منہ میں تو پانی بھر آیا، پھر بھی دکھاوا کرتے ہوئے بولے، تم کہاں اتنی رات کو اگلے گاؤں جاؤ گے؟ آج ویسے بھی چودھری جی کے یہاں سے اچھا کھانا آ جائے گا، جمعرات ہے نا، اسی لیے۔ اس کے بعد اس نئے بچے کو ایک بڑے سے حجرے میں، جہاں باقی سارے طلباء رہتے تھے، وہاں پہنچا دیا گیا اور وہ سب کے ساتھ کھجور کی چٹائی پر سو گیا۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ تو دوستوں، اس طرح سے وہ لڑکا جس کا نام میراز الدین ول سراج الدین تھا، وہ مولوی صاحب کا باقاعدہ شاگرد بن گیا۔ اس کا حافظہ بڑا اچھا تھا۔ اس نے 1 ہفتے میں ہی بغدادی قاعدہ پورا کر لیا اور صرف 3 مہینے میں ہی قرآن پاک پورا کر لیا، اور اب تو وہ اسے حفظ بھی کرنے لگا تھا۔ مولوی صاحب تو بس حیران تھے کہ آج تک ہزاروں شاگردوں کو پڑھا چکے تھے، مگر ایسا حافظہ، ایسی روانی کبھی دیکھنے سننے میں نہیں آئی تھی۔ جب بھی اس کا سبق سنتے تو کچھ گڑبڑا سے جاتے کہ یہ لڑکا انسان بھی ہے یا کوئی اور مخلوق۔ مولوی صاحب ایسا سوچتے ضرور تھے، مگر اپنا یہ خیال کبھی ظاہر نہ ہونے دیا۔ وہ سوچتے تھے کہ اتنا اچھا بچہ ہے، کہیں بددل ہو کر بھاگ ہی نہ جائے۔ وہ بچہ تو اب حافظ قرآن بھی بن چکا تھا، مگر مولوی صاحب کو اب اس سے پیار سا ہو گیا تھا، اسی لیے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔
मौलवी साहब ने उम्र भर शादी न की थी। एक रात मौलवी साहब किसी का निकाह पढ़वा कर लौटे तो ज्यादा मुर्गन खाने की वजह से पेट में तकलीफ महसूस हुई। मौलाना साहब को जब भी बदहजमी होती तो वो हींग का इस्तेमाल करते और ठीक हो जाते, लेकिन वो हींग भी खत्म हो चुकी थी और दोबारा मंगवाने का मौका ही नहीं मिल सका। सारे लड़के सो चुके थे मगर मिराजुद्दीन जाग रहा था और इबादत इलाही में मशगूल था। मौलवी साहब दर्द से कर्राह रहे थे। अरे कोई है जो मुझे कहीं से जरा सी हींग ला दे। मिराजुद्दीन ने सोचा उस्ताद साहब तो तकलीफ में है और उनकी बरवक्त मदद ना की तो शायद अल्लाह पाक मेरी इबादत ही ना कबूल फरमाए। सारे शागिर्द सो रहे थे। इतनी रात में कौन अपनी नींद खराब करे, मगर मिराजुद्दीन हमेशा की तरह खिदमत करने के लिए तैयार। जनमाज लपेटकर ताक में रखी और मौलवी जी के पास जा खड़ा हुआ। मौलवी जी, मैं ला दूंगा आपकी हींग, मुझे पता है हींग कहाँ मिलती है। मौलवी साहब ने कहा, तुम कैसे लाओगे, इतने जरा से तो हो, क्या तुम्हें अंधेरे में डर नहीं लगता? इतनी रात है और सर्दी भी है। मिराजुद्दीन ने कहा, नहीं, मैं तो अपने सारे काम जब चाहूं कर लेता हूं और मुझे अंधेरे से भी डर नहीं लगता। मौलवी साहब पर तो हैरत के पहाड़ टूट पड़े, क्योंकि रात का दूसरा पहर था और ये नन्हा सा लड़का बाहर जाने को तैयार था। मौलवी साहब ने कहा, अच्छा अगर तुम बाजिद ही हो तो फिर दूर न जाना, ये नुक्कड़ वाले बनिए से जरा सी हींग मांग लाओ, कह देना मौलाना जी मंगवा रहे हैं। लड़का तो जैसे इजाजत का ही इंतजार कर रहा था। वो तेजी से बाहर चला गया। उसके बाहर निकलते ही ऐसा लगा जैसे अचानक तेज हवाएं चलना शुरू हो गई हों और बारिश हो रही है। मौलवी साहब का तो दिल ही दहल गया, क्योंकि कमरे में रोशन मिट्टी का दिया भी हवा के झोंके से टिमटिमा कर बुझ गया था। मौलवी साहब दिल ही दिल में परेशान हुए कि बिन माँ बाप के बच्चे को रात के वक्त बाहर क्यों भेज दिया। अगर उसे कुछ हो गया तो? इससे आगे वो कुछ भी ना सोचे, क्योंकि अचानक से दरवाजा खुला और मिराजुद्दीन वापस आ गया। और हैरत की बात ये थी कि बाहर कोई तेज हवा का नामो निशान तक न रहा। हर चीज अपनी जगह पर थी। मौलवी साहब का तो दर्द उसी वक्त खत्म हो गया जब उन्होंने देखा कि मिराजुद्दीन के कपड़े तो बिल्कुल सूखे हुए हैं, जबकि वो कोई छाता या बरसाती भी ओढ़कर नहीं गया था और वापस भी चंद मिनटों में ही आ गया था। और सबसे बढ़कर ये कि उसके हाथ में हींग तक नहीं थी। मौलवी साहब ने अपनी हैरत छुपाते हुए पूछा, क्यों बेटा, ले आए हींग? उसने कहा, जी मियाँ जी। मौलवी साहब ने कहा, तो फिर देते क्यों नहीं, लाओ मुझे दो। मिराजुद्दीन ने कहा, वो मैंने बाहर सहन में लाकर रख दी, आप मेरे साथ चलकर देख लो और जितनी चाहिए ले लो। मौलवी साहब को तो गुस्सा आ गया कि अब मैं बाहर जाकर सहन से खुद हींग उठाकर लाऊं। जब उस दुकानदार के घर से ले आए हो तो मेरे हाथ में पकड़ाने में क्या परेशानी है? बच्चे ने कहा, अरे आप आइए तो सही मौलवी साहब। वो उन्हें बाजू से पकड़कर सहन में ले गया। मौलाना साहब की तो आंखें फटी की फटी रह गई। सहन हींग की बोरियों से भरा पड़ा था, मानो हींग का पहाड़ लाकर उस्ताद की खिदमत में हाजिर कर दी गई थी। उन्होंने एक नजर हींग के अंबार को देखा और फिर मिराजुद्दीन की चेहरे की जानिब देखा। उसका सर हस्बे मामूल उस्ताद साहब के सामने झुका हुआ था। मौलवी साहब ने कहा, इधर आओ, जरा मेरी तरफ आंख उठाकर देखो। उन्हें पहली बार उस पर गुस्सा आ रहा था। उनके पेट का दर्द तो रफू चक्कर हो चुका था। उन्होंने उसे कंधे से पकड़ा, झिंझोर डाला और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोले, सच सच बता दो, तुम कौन हो? क्या तुम्हारा ताल्लुक जिन्नात से है? बच्चे ने कहा, जी मियाँ जी, आपका ख्याल दुरुस्त है, मैं वाकई एक जिन्नात हूँ। उसका सर उस्ताद के कदमों पर था और वो ज़ारो कतार रो रहा था और बराबर माफी की दरख्वास्त कर रहा था। मौलवी साहब ने प्यार से उसका सर अपने कदमों से हटाया और उसे गले से लगा लिया। उसने बताया कि इसी नीम के पेड़ पर, जिसके नीचे सारे बच्चे बैठकर कुरान पाक पढ़ते हैं, वही मेरा बसेरा है। मैं रोजाना कुरान पाक की तिलावत सुना करता था। तब मेरा भी दिल चाहा कि आपकी शागिर्दगी में आऊं। मौलवी साहब जो बागौर उसकी बात सुन रहे थे, अचानक जैसे होश में आ गए और कहा, अच्छा तो अब तुम्हारा मकसद पूरा हो चुका है ना? तुम कुरान पाक के हाफिज भी बन चुके हो। बेशक तुमने आज तक मुझे शिकायत का मौका नहीं दिया, लेकिन मुझे खदशा है कि अगर किसी दिन तुम्हें किसी बात पर गुस्सा आ गया और अनजाने में तुमने अपनी ताकत का मुजाहिरा किया तो तब क्या होगा? बेहतर है कि अब तुम छुट्टी करो और अपनी दुनिया में लौट जाओ।
और अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हें बोतल में बंद करके जमीन में दबा दूंगा, समझे तुम। मौलाना जी की डांट सुनकर तो वो बाकायदा हिचकियां लेकर रोने लगा और बोला, जिस उस्ताद साहब ने उसे इल्म सिखाया वो उनकी जी भर के खिदमत भी ना कर सकेगा, इस बात के लिए वो जिंदगी भर शर्मसार रहेगा। मौलवी साहब ने उसे तसल्ली दी और कहा कि उन्होंने अपना हक उस पर माफ किया, इसीलिए अब वो सीधा अपनी दुनिया में लौट जाए। मिराजुद्दीन मौलवी साहब को अल्लाह हाफिज कहकर किसी नन्हे से बच्चे की तरह दरवाजा खोलकर कोठरी से बाहर चला गया। मौलवी साहब को उसकी आंसू भरी आंखें रात भर रुलाती रही। मौलवी साहब की हिदायत पर हमेशा के लिए लौट जाने से पहले उसने हींग भी वापस गोदाम में पहुंचा दी। इस बात को काफी साल बीत गए और मौलवी साहब समेत सब लोग उसे भूल भाल गए, क्योंकि वो जिन्नात दोबारा कभी लौटकर न आया। मौलवी साहब ताबीज गंडे के भी माहिर थे। अक्सर गांव की नौजवान लड़कियों पर जब कभी हिस्टेरिया का दौरा वगैरह पड़ता और माँ बाप उसे जिन भूतों वगैरह की कारस्तानी समझते तो वो मौलाना साहब के पास आते और वो लड़की फिर से ठीक हो जाया करती। एक मर्तबा एक लड़की को मौलवी साहब के पास लाया गया जो बिना पानी के मछली की तरह तड़प रही थी और बार बार सर पटक रही थी। उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल हो रही थी, बाल बिखर गए थे। मौलवी साहब को वो लड़की बाकी लड़कियों से अलग नजर आई। उन्होंने उस पर कुछ पढ़कर फूंका और अपना अमल जारी रखा। मौलवी साहब कुछ देर तक पढ़ते रहे और फिर वो अचानक चीख पड़े, मिराजुद्दीन तुम तो अपनी दुनिया में वापस नहीं गए, क्या तुमने अपना वादा भुला दिया और ये भी भूल गए कि उस्ताद की नाफरमानी का कितना बड़ा गुनाह है। तुम मुसलमान जिन हो, इबादत गुजार हो, फिर तुम इस लड़की को क्यों परेशान कर रहे हो। अब तो मैं यकीनन तुम्हें इसकी सख्त सजा दूंगा। तुम इस लड़की को फौरन छोड़ दो और अभी मैं तुम्हारा इलाज करता हूँ। मेरा ख्याल है कि मुझे तुम्हें बोतल में बंद करना ही पड़ेगा। जिन ने कहा, नहीं मियाँ जी ऐसा ना करना, आपको अल्लाह का वास्ता, मैं वादा करता हूँ कि अब इसकी दुनिया में कभी लौट कर नहीं आऊंगा, मगर सिर्फ एक बार आखिरी बार मुझे अपनी दुनिया में लौट जाने से पहले आपकी कदम बोसी करना है, आपका आखिरी दीदार करना चाहता हूँ। मैं हरगिज ऐसी हरकत ना करता। अगर मैं अपनी इससे पहले वाली कोशिश में कामयाब हो जाता तो शायद आपको मालूम होगा कि गांव के जमींदार की ठीक उसी रात किसी ने चारपाई उलट दी थी जब मैंने आपको अल्लाह हाफिज कहा था। मेरा सोचना यह था कि यूं इस बंदे के इलाज के लिए आपको बुलाया जाएगा और मैं अपने मोहतरम उस्ताद का दीदार एक बार फिर से कर सकूंगा, मगर मुझे नाकामी का मुंह देखना पड़ा, क्योंकि मुझे भगाने के लिए उन्होंने किसी को बुला लिया था। उसने मुझे सख्त तकलीफ दी और अजियत पहुंचाई, क्योंकि उसने मुझे वाकई एक बोतल में बंद करके खेत में दबा दिया था। वो तो मेरी लगन सच्ची थी कि जमीन पर ट्रैक्टर चला और आज पूरे 10 साल बाद मुझे रिहाई मिली, तो मैंने सोचा कि उस्ताद के दीदार के शौक में मैंने बड़ी सजा पाई है। अब तो मैं जरूर आपकी जियारत करके रहूंगा, चाहे मुझे एक बार फिर से इसके बदले बोतल के अंदर जाना पड़े। बेहद अफसोस है कि मुझे ये तरीका इख्तियार करना पड़ा, मगर मेरी आज ख्वाहिश तो पूरी हो गई है। अब आप मुझे बस आखिरी बार अपनी कदम बोसी का मौका दे दें। मैं अपने उस्ताद के कदमों की खाक पलकों पर लगाना चाहता हूँ, आपके गले लगना चाहता हूँ। मौलवी साहब ने उसे लड़की को छोड़ देने का हुक्म दिया और उसे गले से लगाकर खूब प्यार किया और दरवाजा खोल दिया। लड़की एकदम होश में आ गई, मगर मौलवी साहब की आंखें नम हो गई। तो दोस्तों, ये किस्सा एक मौलवी साहब और एक जिनजादे का था जो हम आपको सुनाना चाहते थे। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।